Today's preacher is Brother Shimi. His full name is Ignatius Shimi Pritam. He's basically from Andhra Pradesh, and he's married to Soni from Lucknow. And little background about him: he holds 2 master's degree. One in information technology, another one is in gender and development studies. And though he had many opportunities for good jobs to earn money, he committed himself for God's ministry full time. We can thank God for his life, and today he will be sharing God's word with us. Brother Shimi, welcome. Welcome. We'd like to hear from you what God has put in your heart. Prabha, are you ready? Prabha will be Yes, I'm ready. Yeah, okay. Over to Shimi. Thank you, Pastor. Thank you for the nice introduction. I'm so Bye. glad to be part of GBC. पास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो और कि आपने मुझे मेरा परिचय बहुत अच्छी तरह से दिया है और मैं जीबीसी परिवार का बहुत धन्यवादित हूँ. It's been an honor and I'm grateful to God for this privilege to share His word with you this morning. और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे मौका मिला है. And I'm thankful to both the pastors and the GBC family for granting me this privilege. और मैं इस अवसर के लिए जीबीसी फैमिली को और दोनों पास्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ. In fact, as family, we've been looking for a good church. और परिवार के रूप में मैं एक अच्छे कलीसिया की खोज में था. A church where God is honored, His word is regarded. एक ऐसी कलीसिया जहां परमेश्वर का वचन का सम्मान होता हो और उसका प्रचार होता हो. And where there is love in the people of God. और परमेश्वर के लोगों में जहां प्यार हो. And we are grateful to God for having us led to Grace Bible Church. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही एक चर्च ग्रेस बाइबल चर्च के बीच में परमेश्वर हमें ले आया. Let's look to God and ask for His grace, even as we are eager to learn from His word this morning. अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ये समय के लिए. Dear Lord, we thank you for this opportunity yet again to listen to your living word. परमेश्वर एक बार फिर से आपका जीवित वचन सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं. Grant us the understanding and your grace to respond to your word. परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें और उस पर चल सकें. And that we may respond in a manner that would please you. ताकि वो प्रतिक्रिया हम दे सकें जो आपको प्रिय हो. Amen. आमीन. And we still have the mood of celebrating the new year. We are in the very first month of 2022. अभी भी हम नए साल के उत्सव में हम हमारा व्यवहार है और हमारा सोच है क्योंकि अभी भी साल के पहले महीने में हम हैं. One of the most frequent New Year wishes we make to each other is that we may have a joyful year ahead. और जब हम किसी को नए साल मुबारक कहते हैं तो हमेशा हम कहते हैं कि ये साल आपके लिए बड़ा ही आनंदित और खुशीमय हो. In spite of the uncertainty whether the new year would offer any better possibility than the year that has passed by. लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं हमें पता नहीं होता है कि नए साल में वास्तव में हमें सारी चीजें खुशी देंगी या नहीं देंगी या सारी चीजें हमारी भलाई के लिए होंगी या नहीं होंगी. We still hope and anticipate that somehow this new year would bring joy into our lives. लेकिन फिर भी हम यही आशा करते हैं
कि ये साल जो है वो हमारे लिए बहुत ही आनंदमय और अच्छी खबर शांतिपूर्ण रहे, and that this year would have reasons and opportunities to celebrate life and to be filled with joy. और ये नया साल हमारे लिए ऐसा अवसर प्रदान करे कि हम जीवन से भरपूरी का जीवन बिता सकें और स्वस्थ रह सकें, हर प्रकार की खुशी प्राप्त कर सकें. And that's what, from the passage that has been read to us today, John the writer states his purpose of writing this letter to his readers. और उसी प्रकार से जैसा हम एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं, विश करते हैं, वैसा ही यूहन्ना इस पत्री लिखने वाला यही कह रहा है कि इस पत्री को लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है. In verse 4 he says, we write this to make our joy complete. और चौथे पद में वो लिखता है कि मैं ये लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो. And in some translation it says to make your joy complete. और किसी बाइबल में ये भी लिखा, अनुवाद में लिखा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो. What else can be the better news than to be assured of joy, and that too in its fullness? और इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है कि हमारा जीवन आनंदमय हो और वो भी संपूर्ण आनंद से भरा हो. Joy in totality, joy that is wholesome. ऐसा आनंद जो संपूर्ण हो, ऐसा आनंद जो अपने में पर्याप्त हो. What is it that John writes about that makes our joy complete? लेकिन यूहन्ना का ऐसा लिखने का तात्पर्य क्या है कि वो क्यों लिख रहा है कि हमारा आनंद पूरा हो. Can someone read from verse 3? और फिर से हम पढ़ लेंगे पद 3 को. 1 John chapter 1 verse 3. पहला जॉन पहला अध्याय और उसका तीसरा पद. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Thank you, sister. So John here is talking about the relationship with the living God, which makes our joy complete. तो यहाँ पर तीसरे पद के अनुसार यूहन्ना जो लिख रहा है वो कह रहा हमारा आनंद जो पूरा होगा वो हमारा यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ संबंध के स्थापित होने पर पूरा होगा. It is the fellowship with the Father and with his Son Jesus Christ that brings or makes our joy complete. और परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागिता से ही हमारा आनंद पूरा होता है. I began to attend GBC with my family since 12th of December last month. और मैं 12 दिसंबर से इसी पिछले साल से 12 दिसंबर से मैं अपने परिवार के साथ जीबीसी परिवार में आने लगा. Though it's a very short span, yet I'm so glad to notice ये तो थोड़ा बहुत कम समय था, फिर भी मैंने एक बात ये ध्यान में रखी इस चर्च के बारे में, that almost every sermon had its emphasis on our relationship with God. कि प्रत्येक उपदेश जो दिया गया प्रभु के वचन से, परमेश्वर के वचन से, वो इसी बात को केंद्रित था, इसी बात पे केंद्रित था कि परमेश्वर और हमारा संबंध सही तरीके से स्थापित होना है. In both the New Year services, we were reminded to have relationship with God as the utmost priority in our lives.
और नए साल और बाकी के दूसरे जो सर्विसेज हुई, उसमें सभी में यही बात पे केंद्रित थी कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा हो। Today we shall explore one aspect of what it means to be in a relationship with God. और आज हम एक बात पे ध्यान देंगे जिससे कि पता चलता है या कैसे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बन सकता है या रह सकता है। The foremost thing to be in a relationship with God is और परमेश्वर के सहभागिता करने में जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये है to be able to get connected to the only true source of life. और वो ये है कि हम एक जो हमारे जीवन का जो स्रोत है उस व्यक्ति से हमारा संबंध स्थापित हो जाए। It involves recognizing and acknowledging that Jesus is the only true source of life. और ये इसका मतलब ये होता है कि हम ये पहचान लें, ये समझ लें कि यीशु मसीह ही केवल मात्र स्रोत है हमारे जीवन का। Christians throughout history were and are being criticized as intolerable for this extraordinary claim. और प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से जो मसीही लोग हैं वो इसी बात के लिए उनकी आलोचना होती रही है कि वो बस एक ही ध्येय रखते हैं, वो दूसरे लोगों को इस ध्येय में शामिल नहीं करते। Many Christians are even persecuted for having claimed that Jesus is the only way to life. और बहुत समय से और हर बार मसीहियों पर सताव भी यही कारण से आया है क्योंकि मसीही ये कहते हैं कि केवल मात्र यीशु ही जीवन का एकमात्र स्रोत है। It so seems to be so exclusive claim. और ये लगता है कि हम बस ये तो एक बहुत ही एक तरीके का एक तरफा हम ये अपना दावा करते हैं। But this claim is not something that Christians have formulated themselves. लेकिन ये दावा मसीहियों ने खुद नहीं बनाया है, But it's the very claim of the God whom they believe. लेकिन ये दावा जो है ये परमेश्वर का ये क्लेम, परमेश्वर का दावा है कि वही केवल मात्र जीवन का स्रोत है। It is what God claimed of himself. यही परमेश्वर ने अपने बारे में ये कहा है। Can someone read from Exodus chapter 21-3, probably in Hindi, if possible? निर्गमन 20 1-3. और उसका 1 से 2 पद पढ़ दें। And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. And 3 also. You shall have no other gods before me. तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। Thank you, sisters. You shall have no other gods before me. और यहाँ पे साफ परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं। It is to this one and only true God that John is referring to in verse 1. और जब यूहन्ना पहले अध्याय में ये पहले पद में ये बात कहता है तो यही कह रहा है, इसी परमेश्वर के बारे में कह रहा, जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ। Where he says that which was from the beginning. और यही शुरू से ही ये परमेश्वर है, The one and only true God. एकमात्र सच्चा परमेश्वर।
the one creator God in whom the heavens, the earth, and the human race has its origins. और वही एकमात्र परमेश्वर है जिससे पृथ्वी और स्वर्ग भी निकाले गए हैं And even the human race has its origins in him alone. और मनुष्य का भी जन्म इसी परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है In verse 1, John uses the metaphor, the word of life. और पहला यूहन्ना उसका पहला पद वो एक तुलनात्मक शब्द इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि what is that brother? The word of life. वो कहता है वचन जीवन का वचन It is the life-generating word spoken by the Creator God. और ये जो शब्द जीवन का जो शब्द है वही परमेश्वर है और उसी शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है It is God's word that brought all life and existence into being. और यही वचन के द्वारा जितनी सृष्टि की एक एक चीज है उसका निर्माण हुआ And in Genesis, we notice that 7 times it's written, and God said, let there be. And God said, let there be. In verse 3, 6, 9, 11, 14, 20, and 24. और He spoke. जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें 7 बार परमेश्वर ने ये सारे वर्सेस में परमेश्वर ने कहा है वही सृष्टि करता है God's word is the ultimate source of all life, including human life. और परमेश्वर का वचन सारी वस्तुओं को निर्माण किया है और मनुष्य को भी उसने निर्मित किया है Can I ask someone to read from Genesis 1, 26 and 27? Genesis chapter 1, verse 26 and 27. जेनेसिस 26 और पहला और दूसरा अध्याय पहला Then अध्याय का दूसरा पद Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। Thank you, sisters. The life that human beings are gifted with is so unique, dignified, and distinguished, unlike the rest of God's creation. और ये जो मनुष्य का जीवन परमेश्वर ने निर्मित किया वो इतना आदरपूर्ण और एकमात्र चलने वाला और अनोखा जीवन परमेश्वर ने बनाया It is only to the human race that God has given the privilege to be in his likeness and image. और केवल सारी सृष्टि में केवल मनुष्य को ही ये उपहार दिया कि वो परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के जैसा उसने उनकी सृष्टि की One of the significant aspects of being created in God's image and likeness is और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का एक खास मकसद चीज ये है to have the potential to be relational beings. कि हम संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति बन गए हैं It's not just the ability to relate with the fellow human beings, ये केवल ये नहीं कि हम एक दूसरे मनुष्य से सहभागिता रख सकें
but the very possibility of sharing a special and intimate relationship with God Himself. लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का सबसे अच्छा और प्रमुख कारण ये है कि जीवित परमेश्वर से हम एक गहरा और बहुत ही निजी संबंध बना सकते हैं। God in His being is relational. परमेश्वर स्वयं ही संबंध स्थापित करने वाला का स्वभाव रखते हैं। In verse 3, we see the plurality within God's being. और तीसरे अध्याय में तीसरे पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अनेक चीजों से संबंध रख सकते हैं, अनेकता में संबंध रखते हैं। John presents God in terms of Father and in terms of the Son Jesus Christ. और यूहन्ना जो है परमेश्वर के बारे में जब बात करता है तो वो पिता और पुत्र की बात करता है। He is the triune God whom we believe. और वो त्रिएक परमेश्वर की बात करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। He is capable of relating within his divine being. और ये त्रिएक परमेश्वर एक दूसरे से संबंध, गहरा संबंध बना के रखते हैं। Father relates to Son and the Holy Spirit. Son relates to Father and the Holy Spirit. परमेश्वर जो है पुत्र से संबंध बना के रखता है, पुत्र परमेश्वर से संबंध रखता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा से संबंध रखता है, पुत्र पवित्र आत्मा से संबंध रखते हैं। When God created us, the human beings, तो परमेश्वर ने जब हम मनुष्यों की सृष्टि की, He installed in us this capability to relate. तो यही गुण जो सहभागिता करने वाला गुण हमारे अंदर भी डाला। And in doing so, He opened up the possibility for us even to relate with Him, the life giver. और ये हमें गुण देकर उसने हमारे लिए ये मार्ग खोल दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध या सहभागिता बना सके, रख सके। That we may have a relationship, an active relationship with the very source of our lives. और ये हम संबंध जो हमारे जीवन का स्रोत है उससे प्रतिदिन का संबंध हम बना सकें। A relationship with the author of our lives. और वो परमेश्वर जो हमारे जीवन का स्रोत है, जो हमारे जीवन को का रचयिता है, उससे हम संबंध बना सकें। When human beings gave into sin, लेकिन जब मनुष्य पाप में गिर गया, it meant not only a rejection to bear God's image and likeness, तो हमने परमेश्वर के सहभागिता रखने वाले गुण को हमने नकार दिया, हमने छोड़ दिया। it's a rejection of a living relationship with God, the life giver. और परमेश्वर के साथ संबंध जो कि हम बनाने का जो गुण हमारे अंदर था, उसको भी हमने नकार दिया। Sin primarily aims at destroying our relationship with God. और पाप का उद्देश्य ही यह है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को नष्ट कर दे। It disconnects us from the source of life and thus brings death to us. और इस तरीके से वो हमारे परमेश्वर के साथ जो जीवन का स्रोत है, उस स्रोत के साथ हमारे संबंध को नाश करके हमें विनाश के संबंध से जोड़ देता है। And the second metaphor John uses in this text is the eternal life. और दूसरा जो तुलनात्मक शब्द यूहन्ना इस अध्याय में जो हमने पढ़ा उसमें इस्तेमाल करता है, वो है अनंत जीवन। In ancient Jewish understanding, और प्राचीन काल के जो यहूदी थे, उनका जो विचार था, विचारधारा के अनुसार time is divided into two periods. और समय को दो भागों में विभाजित किया गया था। The present age
ये पहला जो हम अभी वर्तमान समय and the age to come. और भविष्य में आने वाला समय. The present age is where people choose to be enslaved by sin in a broken relationship with God. और वर्तमान समय वो होता है जब मनुष्य ये चुनता है कि वो परमेश्वर से संबंध तोड़कर पाप के संबंध में के संबंध स्थापित कर ले. The consequences of which are oppression, injustice, poverty, slavery, and so on. और इसी कारण से वो बहुत सी यातनाएं सहता है, या हम दूसरे को सताते हैं, या बहुत सारे गलत कामों के लिए हम प्रेरित होते हैं. We have seen these consequences in the history of Israel when they rejected the relationship with God. और ये जब हम यहूदियों का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं, जानते हैं कि उन्होंने जो परमेश्वर के साथ ये संबंध सहभागिता को जब नकारा था तो कितने विनाशकारी शैतान के फंदे में वो फंसते चले गए थे, बुराइयों में फंसते चले गए थे. And these consequences of sin are even seen in today's world. और पाप का जो जीवन है उसका जो परिणाम है उसको हम आज भी हम अपने जीवनों में, अपने आसपास के जीवनों में देख सकते हैं. The present age is an age of complete mess and brokenness. और ये जो वर्तमान समय है वो तो बहुत ही विनाशकारी और टूटा हुआ और हानिकारक संबंध है, समय है. But the age to come is what John refers to as eternal life. लेकिन जो आने वाला समय है, जो भविष्य का समय है, उसके लिए यूहन्ना कह रहा है अनंत काल का जीवन, दूसरे पद में. And it is not just a time, but it is in the person of God that we find this age. और ये केवल एक समय की बात वो नहीं कर रहा है, लेकिन ये समय हमारे जीवन से और परमेश्वर से संबंधित समय है. This eternal life or age to come is Jesus himself. और ये जो अनंत जीवन है या जो भविष्य का आने वाला समय है वो यीशु मसीह स्वयं है. And when Jesus came, he inaugurated this age to come or this eternal life. और जब यीशु मसीह इस संसार में आए बालक के रूप में, तब उन्होंने ये अनंत काल के जीवन को शुरू कर दिया. Jesus, through his life, death, and resurrection, offered forgiveness from sins. और यीशु मसीह ने अपने जीवन और अपनी मृत्यु और अपने जी उठने के द्वारा ये जो अनंत काल के जीवन को शुरू कर दिया. He offered forgiveness to those who choose to enter into a living relationship with him. और यीशु मसीह ने ये क्षमा का या मेल मिलाप का, फिर से मेल मिलाप का ये अवसर उन लोगों को दिया जो इसका चुनाव करेंगे. It is only to those who genuinely respond to God's forgiving love expressed through Jesus. और ये परमेश्वर के जो क्षमा के स्वभाव का ये जो यीशु मसीह में हमें मिलता है, उसको जिन लोगों ने स्वीकारा, जिन लोगों ने उसे अपनाया, उन्हीं को ये जीवन प्राप्त है. Only they are given this privilege to be part of this age to come, which is the new creation. और ये केवल वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है, जीवन में उतारा है, वही लोग ये भविष्य काल के लिए, ये जो आने वाले समय का एक हिस्सा बन गए हैं. Can one of you read from 2 Corinthians chapter 5 verse 17? दूसरा कोरिन्थियन 5 और उसका 17वां अध्याय, 17वां पद. Auntie, 2 Corinthians? 2 Corinthians 5
17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब बातें नई हो गई हैं. Thank you. And this age to come is this new creation. Those who are in Christ are made new. और ये जो भविष्य में आने वाला समय है वो नई सृष्टि है, यही सृष्टि है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं. And Jesus यही has समय है. And Jesus has inaugurated this new creation and invites us to be part of this new creation. और ये नई सृष्टि का निर्माण यीशु मसीह के इस संसार में आने से शुरू हो गया. यीशु मसीह ने ये नई सृष्टि का काम शुरू किया है. A new creation where sin has no more dominion over us. और ये नई सृष्टि में अब पाप का अधिकार नहीं है. We see it in the same letter, 1 John, chapter 3 and in verse 5. और इसी पद में जो यूहन्ना का पद लिखा है, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और उसका which verse brother? 5, verse 5. पांचवें पद में ये लिखा हुआ है. But you And know, you- yes. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं. The reason why Jesus came into this world is that he may take away sin. और यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए कि पाप को जड़ से खत्म कर दें. And the new creation that has inaugurated in Christ will one day be brought to perfection. और ये नई सृष्टि जो यीशु मसीह ने शुरू की है वो एक दिन परमेश्वर उसे संपूर्ण रीति से पवित्र करेंगे. And when it is brought to perfection, sin is completely done away. और जब वो संपूर्ण कर देंगे ये नई सृष्टि को, तब पाप का विनाश पूरी तरीके से हो जाएगा. And where God himself will be physically present and rule over his new creation. और परमेश्वर तब स्वरूप में, साक्षात स्वरूप में लोगों के साथ वास करेंगे और शासन करेंगे. And this process of responding to God's love in repentance and forgiveness of sins और ये जो प्रक्रिया होती है कि परमेश्वर के इस चुनाव को, इस बुलावे को हम ग्रहण करें और स्वीकार करें, ये प्रक्रिया का कैसे शुरू होती है? that we repent and we seek forgiveness from God. वो इसलिए ताकि हम पश्चाताप करें अपने पापों से और परमेश्वर को मान लें. And the process पापों को छोड़ दें. And the process where we choose to enter into a saving and living relationship with God. और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि हम परमेश्वर के साथ एक जीवित और एक निजता वाले संबंध में स्थापना शुरू कर दें. ये जीवन शुरू हो जाता है. And this whole process is termed as being saved or being born again. और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को कहा जाता है नया जन्म, या ये कि हम अब बचा लिए गए हैं. Or the other terms used are being a new creation or having eternal life. और दूसरे शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे अब हम नई सृष्टि बन गए हैं या हमें अब अनंत जीवन में हम प्रवेश कर गए हैं. So the vital question we need to ask ourselves is, तो ये अब मुख्य प्रश्न इस स्थिति पे हमें ये पूछना है, am I saved? Am I born again? क्या मैं बचाया गया हूँ? क्या मुझे नया जन्म प्राप्त हुआ है? Am I a new creation?
Do I क्या have मैं अब eternal नई life? सृष्टि क्या अब मैं नई सृष्टि बन गया हूँ? क्या मैं इस अनंत जीवन में, ये नए जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ? Well, we may think, why the need to be saved? तब हम सोचेंगे, अरे ये बचे जाने की या नई सृष्टि बनने की क्या आवश्यकता है? Why a relationship with God? What for? क्यों ये रिलेशनशिप हम बनाए? पर मैं किस लिए बनाए? In Genesis 1 and 28, और ये उत्पत्ति 1 और उसके 28 पद में लिखा है, we discover that God had intended a purpose for human beings when he created them. जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसका एक उद्देश्य था मनुष्य के लिए। We are intended to share in God's likeness. हम लोगों को परमेश्वर ने ऐसे बनाया कि हम परमेश्वर के स्वरूप को हम बांटें And to care for his creation on his behalf. और उसकी सृष्टि को उसकी जगह पर हम देखभाल करें। It meant that we provide for God's creation, इसका मतलब है कि परमेश्वर की सृष्टि के लिए हम सहयोग दें, that we nurture and enhance it by godly virtues such as beauty, ताकि हम उसे बचाएं और उसको और भी सुंदर बनाएं, with godly virtues such as beauty, love, justice, peace, etc. और अच्छे सुंदर गुणों को, जैसे सुंदरता है और अच्छाई है और Love, बढ़ोतरी justice. प्यार है, न्याय है, इन सब को हम बढ़ावा दें, इनमें सहयोग दें। His purpose for our lives is larger than our individual aspirations, concerns, and needs. और परमेश्वर की जो हमारे लिए जो ध्येय है, जो इच्छा है, वो हमारे व्यक्तिगत इच्छा से बहुत बड़ी है। We are to shoulder a greater responsibility. अब जब हम नई सृष्टि में बन गए हैं तो अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, बड़ा एक उद्देश्य आ गया है, To care and provide for our fellow human beings. और वो है कि हम दूसरे मनुष्यों के लिए कि हम चिंता करें, उनके बारे में सोचें और उनकी अच्छाई के लिए हम कार्य करें, To care and to provide for the larger society. और बड़े समाज के लिए, जो मनुष्य समाज है, उनकी हम चिंता करें, उनके लिए हम सहयोग दें, And to be concerned for all of God's creation. और परमेश्वर की सृष्टि के लिए एक हमारा चिंताजनक व्यवहार हो। And this is what God calls a life in its fullness. और यही जो है परमेश्वर के शब्दों में ये संपूर्ण जीवन है हमारा। This noble and magnificent God-given purpose and meaning for our lives ये अति सुंदर और महान कार्य जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, it is possible only if we are in a dynamic living relationship with God. ये केवल तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ एक जीवित और प्रतिदिन के लिए कार्यरत संबंध में हम बने रहें। Because God is the author of our lives. क्योंकि परमेश्वर तो हमारे जीवन का स्रोत है, And he is the one who determined this purpose for our lives. और परमेश्वर ने ही ये ध्येय हमारे लिए निर्धारित किया है। And only in a relationship with him that we gain the impetus and the potential to live up to this noble purpose. और परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध बन जाता है, तभी हम ये बड़ा उद्देश्य जो परमेश्वर ने हम पे डाला है, हमें दिया है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। On the contrary, the more we deny and reject personal relationship with God, और
इसके विपरीत जितना अधिक परमेश्वर से संबंध हम नकारेंगे the more we are cut off from the very source of our lives. और परमेश्वर के जो जीवन का स्रोत है उससे दूर हो रहेंगे। And what defines the purpose of our life is our self-centeredness. और अपने व्यक्तिगत जीवन पे ही बस हम केंद्रित रहेंगे। And so we end up living for our own aspirations and for the well-being of our own families. तो ऐसा होगा कि हम बस अपने लिए जिएंगे या अपने परिवार के लिए जिएंगे, इससे ज्यादा हम सोच ही नहीं सकेंगे। It will be I, me, myself, and of course my family. ये बस केवल ये होगा मैं, मेरा और मेरा परिवार, This is the ये least. बस हम सोच सकेंगे। This is the least that we can do with our lives, living for our own selves. और ये तो केवल हमें ये तो करना ही है, हमें ये तो कम से कम हमारा काम होगा कि हम अपने जीवन के लिए बस जिए। It's a life with no concern for the welfare of fellow human beings. लेकिन ये परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करना नहीं हुआ। जो परमेश्वर चाहते हैं उद्देश्य है कि दूसरे लोगों के लिए के प्रति हम चिंता, अपना व्यवहार, अच्छा व्यवहार या उनके लिए भी भला हम सोच सकें। Life with no burden for the broken society. और यदि हमारा जीवन इस गिरे हुए, नाश होते हुए, नष्ट होते हुए संसार के लिए नहीं है, तो ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। Life with no sense of responsibility towards God's beautiful creation. और परमेश्वर की इस उत्तम और सुंदर सृष्टि के प्रति हमारा उत्तरदायित्व यदि कोई नहीं होता है, नहीं हो सकता है। In God's eyes, this is not a life at all. और परमेश्वर की दृष्टि में जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये सच्चा जीवन नहीं है। Life without the source of life is no life. और जीवन के स्रोत के बिना, परमेश्वर से संबंध के बिना कोई जीवन है ही नहीं। This is what sin does to us. लेकिन यही तो पाप हमारे जीवन में करता है। It alienates us from God and from His living relationship. वो परमेश्वर और परमेश्वर के साथ संबंध जो एक सच्चा जीवित संबंध है, उससे हमें दूर रखता है। But God, in His kindness, लेकिन परमेश्वर अपनी दया के अनुसार He keeps revealing His unfailing love to us. वो बार बार हमें अपने जीवित और गहरे प्रेम को प्रकट करता रहता है। And invites us back to His fellowship. और वो बार बार हमें अपने सहभागिता के लिए बुलाता रहता है। So that in repentance we turn back to Him. ताकि पश्चाताप करके हम उसकी तरफ फिरें। To rediscover the true God-intended purpose for our lives. और परमेश्वर की तरफ फिरकर हम उसके जो उद्देश्य को, जो एकमात्र उद्देश्य है, उसको हम समझ सकें। And to enter into a saving and living relationship with Him back again. और उसके साथ हम एक बचाए हुए और अनंत जीवन प्राप्त किए हुए व्यक्ति के साथ के समान हम संबंध फिर से बना सकें। God invites us to a relationship with Him. परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके साथ संबंध बनाए रखें। And many times He does it through intermediary sources. Pardon, brother? Many times He invites us through intermediary sources. और बहुत बार ऐसा होता है कि बीच बिचाव कोई ऐसा साधन या माध्यम निकालता है हमसे, हमारे लिए, ताकि हम उससे संबंध बनाएं। It can be a sermon like this. और हो सकता है ये माध्यम कोई ऐसा उपदेश हो, or a weekly Bible study that we get to attend. या फिर बाइबल स्टडी होती है जो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। It could be through a person's testimony.
और एक व्यक्ति की जीवन की गवाही के द्वारा, or it could be through a piece of literature that we get to read. या फिर कोई साहित्य या बाइबल अध्ययन, बाइबल के जब हम पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर इन माध्यमों के द्वारा बार बार ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम उनसे ये अनंत जीवन वाला संबंध बना लें। Sometimes God invites us even through the circumstances that we are going through. और बहुत बार परमेश्वर जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों के द्वारा भी हमें आमंत्रण दे करते हैं। In the truth is that और सच्चाई ये है in all this, कि इन सारी चीजों में it is God who is inviting us to himself. ये परमेश्वर ही है जो अपने पास हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। It is not we who find him, ये हम उसे नहीं ढूंढते हैं, but it is God who reaches out to us. परमेश्वर हमें ढूंढते हैं इन सारे माध्यमों के द्वारा। And in today's text, twice in verse 2, John emphasizes about God's initiative. और आज के जो हमने बाइबल पढ़ा है, उसमें 2 बार परमेश्वर का किस प्रकार से हमें आमंत्रित करे हैं, ये यूहन्ना बता रहा है। That this word of God appeared to them. और ये पद 2 में लिखा है कि जीवन का जो शब्द है वो हमारे सामने प्रकट हुआ। The eternal life is revealed to us. अब अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन हमारे सामने प्रकट हुआ। It is God himself takes the initiative to come to us and to invite us to a relationship with him. क्योंकि परमेश्वर ही स्वयं पहल करते हैं कि हमें बुलाएं और हमें बताएं ये बातें अनंत जीवन के लिए। And when God invites, his invitation is for everyone. और जब परमेश्वर ऐसा आमंत्रण करते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। He invites the old, the young, and the children alike. वो बूढ़े, जवान और बच्चों, किसी को भी वो आमंत्रित करते हैं, सबको। And he expects that each of us as individuals would respond to him. और उसकी इच्छा यही होती है कि प्रत्येक को जिसको आमंत्रण मिला है, वो सब उसके पास आए, उसको ये प्रतिक्रिया दें। And that we enter into a personal relationship with him. और हम इस अनंत काल के जीवन में परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए अंदर आ जाएं, शुरू कर दें। Probably many of us are already in a living relationship with God. और हम में से शायद बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग हैं जो परमेश्वर के साथ इस जीवित संबंध में हैं, ऑलरेडी हैं, स्थापित हैं। And we need to thank God for that और opportunity. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। But what we need to ask of ourselves is, लेकिन हमें अपने से स्वयं से ये पूछने की आवश्यकता है, how am I growing in that relationship? कि मैं उस संबंध में कैसे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ कि नहीं। Do I have the same excitement to look forward, to relate with God, to talk with him, and to let him talk to me? क्या हमारे अंदर भी वही उत्साह है कि हम उससे संबंध रखें, उससे बातचीत करें, उसके साथ उठे बैठे? Or probably over a time, there is a possibility जब समय कुछ बीत जाता है, जब इस संबंध में हम आते हैं, तो समय कुछ बीत जाता है, तो हम probably we get casual with this relationship with God. तो हम
थोड़ा एकदम उतना ज्यादा हम उत्साहित नहीं रहते हैं। हम बहुत बार इसको बड़ा साधारण रूप से हम इसे लेते हैं। And gradually we begin to entertain what is sinful in our lives. और धीरे धीरे ये जो हमारे अंदर जो आ जाता है, ये समय वो शैतान को या पाप को हमारे अंदर आने में सहायता कर देता है। And slowly, when we feed this sin, it grows in our lives. और जब हम पाप को हम खाना देने लगते हैं या उसको बढ़ावा देने लगते हैं, तो हमारे अंदर पाप बढ़ने लगता है और फिर हमारा अनंत जीवन खत्म होने लगता है। We think that we are in a relationship with God, हम सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर के संबंध में हैं, हम उससे संबंध बना के चल रहे हैं, but we are not actually growing in this relationship. लेकिन हम इस संबंध में बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें धीमे हो गए हैं, मध्यम हो गए हैं। And it's time for us, as God calls us back to his relationship, और ये समय अब यही है कि जैसे ही परमेश्वर फिर से हमें इस संबंध के लिए आमंत्रित करते हैं, we need to renew our relationship with God and make it a dynamic one. तो हमें इस संबंध को फिर से जैसे नयापन देना है और हमें फिर से वही बहुत महान और बड़ा संबंध बना के चलते रहना है। And probably there could be a few among us who have not yet entered into a relationship with God. और शायद हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस अनंत काल वाले जीवन को अभी शुरू भी नहीं कर पाए हैं। And we need to ask ourselves, is this the life what I'm living is a life at all? और हमें तब अपने से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, क्या ये जीवन जो हम जी रहे हैं, क्या यही जीवन से हम खुश हैं, Am I संतुष्ट हैं? willing to choose God and his relationship? क्या मैं परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के जो जीवन का स्रोत है उससे संबंध बनाने के लिए मैं इच्छुक हूँ? It does not matter with the age. वो आप किस उम्र के हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। If you think you are too old to respond, आप सोचते हैं कि शायद मैं अब तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ या बहुत ज्यादा उम्र में बढ़ गया हूँ, तो इसलिए मैं अब परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता। remember that it is never too late to make a wise choice. तो हम ये याद रखें कि हम ये कभी भी इतना देर नहीं होती है जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का निर्णय लेते हैं। किसी भी उम्र में हम कर सकते हैं। You may say, I am too young. और बहुत से लोग कहते हैं अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं संबंध बना सकता। Remember that it is the right time to make the best choice. लेकिन यही समय है, जब आपने सुन रहे हैं, यही समय है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का निर्णय लीजिए और शुरू कर दीजिए। You may say that I am only a child. आप कहेंगे मैं तो केवल बच्चा हूँ। Remember that there is no better time than to begin to live life and in its fullness. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी यही समय है जो सही समय है। जब आप सुन रहे हैं इस बात को, तभी ये समय है कि आप परमेश्वर को अपना से संबंध बना के ये जो नई सृष्टि है उस सृष्टि के जीवन में आप प्रवेश करें। The earlier we get to come to a living relationship with God, क्योंकि जितना जल्दी हम ये जीवन हम शुरू करते हैं, we will have no regrets in our lives. तो उतना ही ज्यादा हम दुखी होने से बच जाते हैं। We will not have much of our wasted years in our lives.
और हम अपने जीवन के अच्छे There साल won't be much व्यर्थ of wasted करने से years बच in जाते our lives. और अपने जीवन के अच्छे सालों को हम व्यर्थ गंवाने से बच जाते हैं। And it is in this direct, personal, and daily choice और ये जो व्यक्तिगत और प्रतिदिन का जो हम चुनाव कर रहे हैं to have fellowship and relationship with God, कि परमेश्वर के साथ सहभागिता बना लें, we are nurtured in His God's likeness. तो दिन प्रतिदिन जब हम ये करते हैं, निर्णय ले लेते हैं, तो दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं We are equipped to live up to God's intended purposes. और परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देते हैं, वो गुण देते हैं, ताकि हम उसके परमेश्वर का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवन व्यतीत करते रहें। And this is what makes our joy complete and our lives fulfilled. और यही है जो हमारे आनंद को पूरा करता है और हमारे जीवन को पूरा करता है। And to those who choose a personal relationship with God, और जो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का चुनाव करते हैं ताकि उसके संबंध बना के रखें, like the way John said in verse 1, जैसा कि यूहन्ना ने पहले पद में ही कह दिया है, we have heard him speak to us. हमने उसकी बात सुनी है We have seen him with our eyes. और अपनी आंखों से देखा है We have touched him with our hands. और हमने उसको अपने हाथों से छुआ है। God will lead us to such an experiential knowledge of himself. तो परमेश्वर हमें अपने जानने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव को जानने के लिए, परमेश्वर को स्वयं जानने के लिए हम आगे जीवन में बहुत सुंदर अवसर परमेश्वर हमें देते रहेंगे। May the Lord help us to choose his relationship परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करे कि हम परमेश्वर के साथ ये संबंध का चुनाव करें and to have his purposes fulfilled in and through our lives. और परमेश्वर के जो हमारे सृष्टि करने का जो उद्देश्य है उसको अपने जीवन से पूरा करने में समर्थ हो सके। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Didi, can I request you to pray? Okay. Father God, we thank and praise you for this wonderful word that we have heard today. परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस वचन को सुनने में आपने हमारी सहायता की है। प्रभु जी धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि जब हम में से बहुत लोग हैं जो ये वचन सुन रहे हैं, हम लोगों ने ये जीवन शुरू कर दिया है प्रभु जी आपके साथ। आपका ये जो अनंत काल वाला जीवन है प्रभु जी, वो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन प्रभु जी बहुत बार हम ठंडे हो जाते हैं। हम इस बात को स्मरण नहीं कर पाते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी, आपका गुण, आपका स्वरूप हमारे अंदर जो आपने सृष्टि के समय डाला प्रभु जी, उसी सृष्टि को संपूर्ण करने में प्रभु जी आप लगे हुए हैं, लेकिन हम वो उद्देश्य भूल जाते हैं जब हम बहुत संसार की चीजों में बिजी हो जाते हैं, डेली काम में बिजी हो जाते हैं, तरह तरह के लोगों के साथ संगति करते हैं या सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। जब दुख बीमारी आती है, जब कठिनाई आती है, जब समस्याएं आती हैं, तो प्रभु जी ये जीवन, ये स्वभाव हम बहुत बार भूल जाते हैं और आपके स्वभाव को सर्वोपरि नहीं रखते। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि सचमुच में बार बार जो ये आप हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्रभु जी कि हम फिर से रिन्यू कर सकें इस संबंध को, प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और खास करके हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर शिमी के लिए, जिन्होंने इस बात को फिर से हमें रिमाइंड किया
कि एक बार के संबंध को यदि थोड़ा भी उसमें रुकावट आ जाए तो फिर से दोबारा हम उसे चालू रखने के लिए हमें परमेश्वर के उद्देश्य को अपने सम्मुख रखना जरूरी है। प्रभु जी, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि हम सब इस नए साल में, ये नए साल जो अभी शुरू किया है प्रभु जी, उसमें बड़े बूढ़े जवान हम सब प्रभु जी जैसा आप चला रहे, जैसा आपका वचन बता रहा है, आपके वचन को पढ़ने में, आपके जो उपदेश हैं उनको सुनने में, उनके द्वारा प्रभु जी इस जीवन को हम सचमुच में आपकी संगति में हम बढ़ा सकें और चला सकें। प्रभु जी हमें शैतान की युक्तियों से, शैतान की दुष्टता से हमें बचा के रखें प्रभु जी। प्रभु जी हर एक बात में आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु जी। खास करके हम आपकी आशीष चाहते हैं ब्रदर शिमी के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि उन्होंने आपका वचन फिर से हमें सुनाया है और हमें रिन्यू किया है प्रभु जी। हम सब इस नए साल में एक नए तरीके से रिन्यू होकर प्रभु जी आपसे संबंध से ललायित रहें और आपके साथ बढ़ने में इच्छुक रहे प्रभु जी, और प्रतिदिन प्रार्थना और बाइबल अध्ययन और हर एक बातों में प्रभु जी हम आगे बढ़ते जाएं, भलाई करने में हम आगे बढ़े प्रभु जी। आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हम कमजोर हैं फिर भी हमारी सहायता करें कि हम इन सब बातों को पूरा कर सकें। धन्यवाद और स्तुति के साथ इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन। Amen.